Good morning, all of you. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, students, today our discussing topic will be from English core class 12th from the book of Flamingo. My mother at 66, author Kamala Das. This is the first poem of 12th class. Okay, so to understand this video, first of all, you have to see the previous video, summary video. So until unless if you would not see the summary video, so you cannot understand this concept. So that is why I request you to see the previous video. Okay, then let's begin. So before entering to this video lecture, I would like to request you if yet you haven't subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell icon. At the same time, forward it to your friends and your classmates. So let us begin. So in this chapter, we are going to discuss about the theme of this chapter and also structure, language, structure, language use, tone, etc. Then after one by one major talking point, there are almost yes, four major talking points, and then after we will discuss about literary device. Okay, so we will cover like this way. But first of all, you have to see the summary. Then only you can understand about it. So let me tell you first of all theme of this chapter. So you can see the red marked three line, and that is main point. She is sensitive writer who captures the complex subtleties of a human relationship in a lyrical idiom. My mother at 66, an example. So let me tell you about her life background. Kamala Das, 1934 to 2009, means she was born in 1934 and died in 2009. Where she was born? She was born in Malabar, that is in Kerala. She is recognized as one of India's foremost poet. Okay, वो एक इंडिया का फॉरमोस्ट पोइट के रूप में वो रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है. हर वर्क आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी. उनके जो कार्य है उसके ओरिजिनलिटी के ऊपर जाना जाता है, और वर्सैलिटी एंड द इंजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी. तो कमला दास ने बहुत से नॉवल, कई सारे नॉवल एंड साथ ही साथ कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो इंग्लिश में और मलयालम में उन्होंने पब्लिश कर रखा है, जो उनका पेन नेम है, मतलब अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी. माधवी कुटी नाम से है वो. Some of her work in English include the novel Alphabet of Lust 1977. उनके कार्य में से कुछ इस प्रकार है, जो एक नॉवेल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट जो 1977 का है. एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट, छोटे छोटे कहानियों का एक कलेक्शन है जिसका नाम है पद्मावती द हार्लोट. हार्लोट यानी उसको एक प्रकार से आप कुछ शब्द जो है डिक्शनरी से आप उसको ढूंढ करके निकालें. हार्लोट कोई अच्छा शब्द नहीं है, एक डिक्शनरी के आधार पर इसको एक वेश्यावृत्ति करने वाली औरत के साथ औरत का बताया जाता है. अदर स्टोरीज 1992. फिर उसके बाद और कई स्टोरी है जो 1992 का है. इन एडिशन टू 5 बुक ऑफ पोइट्री, इसके साथ साथ और 5 बुक के जो 5 बुक पोइट्री का जो समिष्टीकरण है. शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स
subtleties of human relation in a lyrical idiom. My mother at 66 is an example. एक सेंसिटिव राइटर है जो ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशली जो इंसान का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको लिरिकल आइडियम के द्वारा तहत वो प्रस्तुत करती है, जो माय मदर एट 66 उनमें से एक है। तो रीडिंग करने से पहले एक छोटी सी अपील है। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। ओके, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र ढलना ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ओके, दिन प्रतिदिन उम्र बढ़ते जाना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको कोई भी टाल नहीं सकता, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। नोबडी कैन नॉट डिने अबाउट द एजिंग। सपोज आई वॉज 40 years old but now I am 45 years old. Before 10 years I was might be 35 years old, but now I am 45 years old. So the age is always growing on. That is the true fact, and we are getting older and older. Have you ever thought what are elderly present aspect from us? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो एल्डरली है पेरेंट्स, ठीक है, वो हमसे क्या चाहते हैं? इसका जवाब आप ही खुद तय करें। स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, यूज, टोन, ठीक है। सबसे पहली बात है नंबर ऑफ स्टांजास। इसमें सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास, ठीक है। इसमें बिल्कुल सिंगल एक सेंटेंस के जरिए खाली कॉमा दे करके इसको लिखा गया है। अगर राइम स्कीम के बारे में कहा जाए तो देयर इज नो एम्प्लॉयड। ओके, चॉइस ऑफ वोकैबुलरी सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। सिंपल का मतलब साधारण है, और जो जटिल रहित है, जटिल नहीं है। यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस एम्प्लॉयड टू डिस्कस द मदर एंड द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है खास करके मदर के बारे में, और साथ ही साथ उसका जो पोएट का जो स्टेट ऑफ माइंड है, माइंड की अवस्था है, उसके बारे में बताया जाता है। मेजर टॉकिंग पॉइंट, मेजर टॉकिंग पॉइंट का मतलब है जैसे कि इस पोएम को दो भागों में बांट सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थिंक और वी विल डिस्कस वाइल दे वर कमिंग इन द कार। ओके, अपने गांव से जब वो कार में ड्राइविंग करके आ रहे थे, वो इंसिडेंट को हम देख सकते हैं। आफ्टर व्हेन दे रीच्ड टू द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद का इंसिडेंट को भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग टुगेदर, एक ही साथ वो जा रहे होते तभी क्या होता है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी। जैसे कि हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे कोचिन के लिए अपने पेरेंट्स को होम से, वो भी लास्ट फ्राइडे के बाद, सुबह के बाद थे, तो मैंने अपनी माँ को मेरे बगल में बैठे हुए देखा। और वो देखने के बाद उसने क्या क्या मन में सोचा और सोची, ये आप समरी वीडियो से उसको देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी है कुछ रियलाइजेशन। पहले तो उनका ट्रैवलिंग है, दूसरा रियलाइजेशन, यानी वहाँ पे उनका क्या फीलिंग होता है। जैसे कि डॉज ओपन माउथ, मदर जब सोई हुई थी, ठीक है, उसका मुंह थोड़ा खुल गया था। व्हेन हर मदर वाज स्लीपिंग beside her in the car, her mouth was little bit opened. Okay, her face answered like that of a corpse
and realized with pain that she was as old as she looked but soon. जैसे वो देख रही होती है अपनी माँ को, थोड़ा सा उसका मुंह खुल गया था और उसको उसका मुंह जो है उम्र के कारण बिल्कुल मुरझाया हुआ था। जैसे मान लो ये क्रॉप शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जैसे किसी डेड बॉडी को देखने समय हमें जो फीलिंग होता है, अब पॉइंट जब कार के अंदर थे, आ रहे थे रास्ते में, तभी वो अपनी माँ को देखते हैं और उन्हें ऐसा फीलिंग भी होता है कि उनका मुंह को जो जैसे वो देखती है तो एक डेड बॉडी के साथ वो अपने मदर का जो मुंह को तुलना करती है। तो सिमिली यहाँ पे वही बात है, फॉर कंपैरिजन विद ए डेड बॉडी, यानी माँ का जो मुंह है उसको वो कंपेयर करती है किसके साथ, एक डेड बॉडी के साथ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है सिमिली क्या है तो आप इसका आंसर यूँ ही दे सकते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट एट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन की कंडीशन कब होता है, लुक्ड बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड यंग लुक्ड आउट एट यंग trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। तो यहाँ पे दो बातें बताया गया है। सबसे पहली बात तो है कि जो ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी जैसे जैसे कार की गति आगे की तरफ जा रहा है तो जो जैसे कि दो साइड में अगर देखें तो देखते समय ये सारे जो पेड़ हैं, जब वो थोड़ा अपने माँ को अंदर देख करके निराश हो जाती है तो किसी न किसी रूप से अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो आउटसाइड में देखती है। लेकिन आउटसाइड देखने के बाद वो दृश्य भी और एक अलग सा थॉट को लेकर के आता है उनके मन में। जैसे वो बाहर देखती है तो एक ऐसा होता है कि पेड़ सारे जो पीछे की तरफ जा रहा है ऐसा लगता है, और ये स्वाभाविक है। जब हम किसी गाड़ी में जाते हैं तो हम जब साइड को देखते हैं तो पेड़ वगैरह जो है पीछे की तरफ जाने की तरह लगता है। तो इसमें ये हो गया कि कई चीज़ें जो है जितने हम आगे जाते हैं जो समय हमें हमारा पीछे पीछे चलता रहता है, यानी समय हमसे पार कर लेता है। फिर चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम, बच्चे घर से खेलने के लिए जाते हैं। ये एक बचपन की यादगार है। हम बच्चे होते हैं तो जवान भी होंगे, जवान होने के बाद मध्यम एज में भी आएंगे, मध्यम एज में आने के बाद हम जरूर बुजुर्ग भी हो जाएंगे। उसका मतलब मेरे विचार के अनुसार ये है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, लेकिन जैसे वो एयरपोर्ट में पहुंचती है तो दूसरा इंसिडेंट होता है जो आगे चल करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर एंटीथेसिस के रूप में इमेज ऑफ रीजेनरेशन एंड एक्सोरेंस यूज टू ड्रॉ ए क्लियर contrast with the mother's degeneration state। ओके, यहाँ पे माँ का जो degeneration state है, यानी किसी समय वो भी यंग थी और आज बुजुर्ग हो गई, किसी समय पॉइंट भी खुद एक बच्ची थी, आज वो मध्यम एज में आ गई। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ सेपरेशन। ओके, जब वो एयरपोर्ट में पहुँचते हैं, when they reached to the airport and that was the time of separation। okay, जब कभी हम गांव जाते हैं, when we go to home, हैं, so somebody comes us to drop the airport at the railway station, before entering to the flight either train, we look back to our relatives। Like the same way, she also looked back, and when she looked back and that was the time of separation,
she felt something, and what she felt maybe next time I will meet or not. That was in her heart, but she has shown something. Next time, definitely we will meet. Away, I looked again at her, one pale as a late winter moon. Remember, उसके मुंह के बारे में, फेस के बारे में, यानी पोएट के मदर के फेस के बारे में 2 बार वर्णन है। एक बार जब वर्णन हुआ था तो तभी उन्होंने ऐसा देखा था जो क्रॉप्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यानी डेड बॉडी की तरह है, हो चुका है। अब यहाँ जब एयरपोर्ट में वो आती है, एयरपोर्ट में आने के बाद फिर वो यही देख करके कहती है कि उसका जो मुंह है अभी उसे एक लेट विंटर मून की तरह दिखता है। लेट विंटर मून का मतलब है सर्दी के टाइम पर किस तरह का धुंधला धुंधला दिखने वाला जो मून है, और ऐसे दिखता है उसके माँ का फेस। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यानी जैसे वो देखती है तो उसी बचपन के जो फैमिलियर एक है, मेरी माँ मर जाएगी तो मेरे साथ क्या होगा, ये जो डर बचपन में कभी कभी होता था, वही फैमिलियर डर अब उनको सताने लगी। माई चाइल्डहुड फियर बट आई सेड वाज सी यू सुन अम्मा, ये तो मेरे दिल में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हौसला को माँ को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे पोएट क्या कहती है कि हम ज़रूर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, उनको स्माइलिंग के साथ वो क्या करती है, विदाई करती है। तो यहाँ पे सिमिली क्या चीज़ होता है, मदर इन ए डेकेइंग स्टेट, माँ का जो डेकेइंग स्टेट है, जैसे कि यहाँ पे लेट विंटर है ना, मून के साथ तुलना किया गया। कॉन्टेस्ट रिमेंड ऑफ हर अप्रोचिंग डेथ, यानी उसका डेथ का समय अब बहुत ही नज़दीक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जब अपनी ग्रैंड मदर को लास्ट टाइम देखा है ना, और मैं बस बहुत ज़ोरदार एक चुम्मा दिया उसको, और मैंने कहा क्या पता अगले बार जब मैं आऊँ तब मैं तुझे मिलूँ या नहीं मिलूँ। और वास्तव में वही हो गया। 2013 को उनका डेथ हो जाता है, और 2010 को ही मैं मिल पाया था। तो ये रहता है हमारे अंदर, जब हमारे घर पे कोई बुज़ुर्ग होता है तो कभी कभार हम गांव जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगली बार जब हम आएंगे तब यह हमें मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। नोटिस दैट द पोएम एंड्स विद एन एलिप्सिस, एक एलिप्सिस के साथ ये ख़त्म होता है। क्या चीज़ है वो, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, those highlighting lack of colors, the dilemma of staying with her mother or moving on with her life continues to haunt the poet, overwhelmed with fear, guilt and speechlessness। तो यहाँ पे उसके अंदर वो फीलिंग्स होता है, एक स्पीचलेसनेस, फियर, गिल्ट, ये सभी फीलिंग्स उसके अंदर आता है। रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन टू एम्फसाइजेस द एफर्ट पुट इन बाय द पोएट टू फैब्रिकेट द स्माइल इन ऑर्डर टू अश्योर हर मदर। स्माइल 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 इसका रिपीटेशन है, और ये स्माइलिंग को वो इसलिए दिखाती है कि उसको मदर को ऐसा लगे कि अगली बार भी ज़रूर हम मिलेंगे। लेकिन एक एलिप्स यानी एक प्रकार के जो दुख, गिल्ट, फियर, इन सभी के साथ चल कर के ये ख़त्म होता है।
लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे जब हम देखते हैं, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स, ये सिमिली है, उसका चेहरा एक डेड बॉडी की तरह है, ठीक है। फिर उसके बाद यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये भी इमेजरी है। यंग ट्री स्प्रिंटिंग जो है, हालांकि पेड़ पीछे नहीं जाता है, वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, तो ये एक इमेजरी है। फिर उसके बाद मैरी चिल्ड्रन स्पॉइलिंग आउट, मैं वो देखते देखते वो भी एक इमेजिन कर रही कि जो खुशी बच्चे है ना, हैप्पी चिल्ड्रन जो है वो क्या कर रहे हैं कि स्पिलिंग आउट। दूसरा सिमिली यहाँ पे हम देखते हैं, वन पेल एज ए लेट विंटर मून। दोनों लाइनें जो है, हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, फिर उसके बाद वन पेल एज ए लेट विंटर मून, ये दोनों के दोनों सिमिली है और बीच के दो लाइनें इमेजरी है। फिर उसके बाद स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीटेशन है। तो ये सभी उसके आउटलुक है जो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ा सा आप समरी को देखेंगे तो इसको समझने में और भी आपको आसान हो जाएगा। थैंक यू, may God bless you।